in our previous video, we have discussed some definitions about laws of motion, and in that particular video, in that particular lecture, I have told you earlier that what was the force and what were its dimension as well as the SI unit of that force, because we have already studied about the units, system of units. In that particular system, we have studied about the CGS system, SI system, MKS system, FPS system, whole of the four system we have studied there. Now in our today's lecture, we will discuss about the laws of motion. What are laws of motion? Let's discuss that. But before discussing the laws of motion, I have some definitions for you. For example, here it's a force. What is the force? Now, you know, everything that comes to the motion, it needs the force. The source due to which a body changes the position is the force. Without the force, there will be no change in the position of the body if the body is at rest. If a body is in rest, then definitely it will remain in its own state unless or until an external force is applied on that particular body. Whenever the force will be applied on that particular body, it tends to change, or it changes the position of that particular body, and body will be no longer left there. Okay, it will not remain there and it will change its position. If the body continuously changes its position, then we definitely say that this body is in motion, not at rest. Whenever it will be in motion, we will say that there was a source that bring that body, that particular body, in motion. Okay, so what's the force? Force is actually the push or pull. We can say, if we push anything, we can say that this is a force applied. If we pull the thing, we can say that it is the force applied. But one more thing is to keep in your mind, that is, whenever the force is applied, it tends to change, or it definitely change the position of the body. Okay, it tends to change, because whenever I put like this, okay, but this wall is not changing its position. Why? It depends upon the mass, na? Okay, it depends upon mass. If mass is very much heavy than our force applied in newtons, then we can say that we will not be able to move that particular body. That body will not change its position. Okay, but this force, but force is still applied. But force is applied now. Okay, we can say that force is applied, which always tends to change the position of the body, or it changes. It's other thing that it can change the position of the body, but it can not always change the position of the body. In some of the cases, the body remains as it is. Okay, then still the force is applied. Still the force is applied. Okay, here I have written that any push or pull that changes or tend to change the position of the body is called the force. Simply I have discussed here. Okay, now what's the SI unit of the force? SI unit of force is Newton. But what about the CGS system? CGS system means CGS. It means C for centimeter, G for grams, and S for second. If you measure the distance in centimeters, the weight or mass in grams, and time in seconds, you can say that this system of unit in which I have done the measurement, it is the CGS system. But another system was there. It was MKS system, it was FPS system. MKS system means if the distance is measured in the meters, if the mass is measured in the kilograms, and if the time is measured in seconds, then this system will be MKS system, and at last it is FPS system. What is this? FPS system means if the distances are measured in foot or feet, and the masses, that means vazan, it is measured in pounds, and the time is measured in seconds, you will definitely say that this system of unit is FPS system. Okay, I have already discussed about this in my first video of the first chapter. Okay, I have discussed this system of units there. Okay, CGS system. In CGS system, what about the units of the force? What about the units of the force? Force has the units of Newton, but in SI system. But in CGS system, what will be the force units of force? It will be dyne. And you will come to know that this dyne, 1 lakh dynes becomes the 1 Newton of the force. One force contains 1 lakh dynes. That means 10 raised to power 5 dynes. 10 raised to power 5 means there are 5 zeros with 1. Whenever there are 5 zeros with 1, we can say that this particular number is 1 lakh. So there are 1 lakh dynes in 1 Newton. In 1 Newton, there will be 1 lakh dynes. Okay. Now a table lying on the floor, definitely it will be remain at rest. Whenever the force is applied, it will come to motion. It will come in motion and it will continue in state of motion. But till then the force must be applied. Force will be continuously applied, then the body will be in
continues to remain in motion. Okay, this is all about the force. तो अब मैं आपको बताता हूं कि मोशन क्या होता है। देखो, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को बदल दे, जहां पे मैं खड़ा हूं तो मैं रेस्ट में हूं, जैसे मैं अपनी जगह बदलूं तो मैं मोशन में आ गया। लेकिन क्या मोशन में तभी काफी है इतना कहना? नहीं, मैं ये कहूंगा कि मैं अगर अपनी पोजीशन को लगातार बदलता रहूं, यहां रखा अब लगातार फिर से बदला, तो अब मैं मोशन में हूं। मतलब टाइम के साथ साथ अगर आप पोजीशन को बदलो, अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ बदलती ही रहे, तो उसको हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। अरे टाइम तो बदलता ही रहता है, टाइम को हम इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि टाइम तो चल ही रहा है, टाइम को कौन रोक सकता है? टाइम तो चल रहा है, लेकिन चलेगा कौन? उसके साथ साथ हमारी बॉडी चलती रहनी चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए। बॉडी का मतलब सिर्फ हमारा जिस्म नहीं होता, बॉडी का मतलब हर वो टेबल, चेयर, ये सब, डेस्क, ये सब बॉडीज कहलाती है फिजिक्स में। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट कहो या बॉडी कहो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी वो रेस्ट में रहेगी, तो इसका मतलब फोर्स अप्लाई करने पर उसको मोशन में लाया जा सकता है। मैंने बोला लाया जा सकता है, या लाया जाएगा नहीं, लाया जा सकता है। हो सकता है कि वो बॉडी ना मूव कर पाए क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा, उसका वजन ज्यादा होगा। जिसका वजन ज्यादा है, मास पे डिपेंड करता है भाई, मास पे डिपेंड करता है। अगर मास ज्यादा है तो उसको मूव करने में, हाँ ठीक है, फोर्स ज्यादा लगाई जाए, उसके उतने न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाई जाए, तो हो सकता है वो बॉडी मोशन में आ जाए। लेकिन हमेशा ये कहना कि फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी मोशन में आएगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि उसकी हम फोर्स ना अप्लाई कर रहे हो जिससे वो मूव कर पाए, उससे ज्यादा फोर्स लगाने पर हो सकता है वो मूव कर जाए। ठीक है, ऐसा डिपेंड करता है ना। ओके, तो ये मोशन के बारे में था। अब देखो, एक्चुअली जब भी कभी हम चाहते हैं ना किसी बॉडी को मूव करना, तो ऑब्जर्वर क्या करता है? देखो, ये मैंने इनर्शिया के बारे में लिखा है और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूं इसके बारे में। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, तो क्या होता है? हमें थोड़ा सा ताकत की जरूरत पड़ती है लगाने की। क्यों? क्योंकि वो बॉडी ऐसी है ना, वो अपनी जगह से रेस्ट वाली स्टेट को छोड़ना नहीं चाहती। वो चाहती कि मैं रेस्ट में रहूं, जो मोशन में, वो चाहती मैं मोशन में रहूं जब तक हम रोके नहीं। तो बॉडी की इसी खूबी को, उस चीज की इसी खूबी के को कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहे, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहे, उसी खूबी को इनर्शिया बोलते हैं। अब खूबी पता है ना आपको? एबिलिटी बॉडी की, या बॉडी की प्रॉपर्टी, बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहे, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहे, उसी खूबी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, लेकिन उस खूबी के खिलाफ जब हम काम करते हैं, वो खिलाफ वाली बात क्या हो गई कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे। भाई, हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी की अपनी खूबी जो है ना वो गई। अब वो रेस्ट में रहना चाहती थी, लेकिन हमने फोर्स लगाई तो उसको मोशन में कर दिया। अरे कोई बॉडी मूव कर रही है, वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, हमने फोर्स लगाई तो उसको रोक दिया, वो अलग बात है। फोर्स लगाने पर बॉडी रुकती है, लेकिन अरे उसकी अपनी खूबी तो भी है, अपनी भी तो खूबी है ना उसकी, कि वो अपनी स्टेट में रहती है। अगर हम ना रोकना चाहें तो वो नहीं रुकेगी तो मूव करेगी। इसका मतलब वो उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है कि मूव है तो मूव करती रहे, रुकी है तो रुकती रहे। कोई भी चीज, आप किसी चीज को फेंको, आप थ्रो करते हो, एक स्टोन को ही थ्रो कर लो, एक बॉल को थ्रो करते हो, तो क्या वो हमेशा जिंदगी भर चलती रहती है? वो रुक जाती है ना। तो रुकने का रीजन क्या? सबसे पहले यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जीएफ। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसके बाद क्या होता है? उसके अलावा क्या है? उसके अलावा आपके पास है फ्रिक्शन फोर्स। वो फ्रिक्शन भी जो होती है ना, वो बॉडी को रोक देती है। तो हम ये कहते हैं कि बॉडी कम टू रेस्ट। ठीक है, और बॉडी मूविंग स्टेट में आ गई, तो उसने अपनी स्टेट जो है वो बदल दी है। तो जब तक वो स्टेट नहीं बदल रही है, उसकी अपनी खूबी है जिसकी वजह से वो नहीं बदल रही है, उसी खूबी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ये देखो इनर्शिया। अच्छा, मैंने कहा कि रेस्ट वाली स्टेट वाली उसकी खूबी है कि वो रेस्ट में रहना चाहे। मैंने ये कहा कि वो मोशन में तो मोशन में रहना चाहे। अगर एक डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जाएगी जब तक उधर से मोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो अपनी स्टेट में ही जब जाती रहेगी ना बॉडी, तो वो उसकी खूबी है। अगर वो रेस्ट में रहना चाहे तो उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। अगर वो मोशन में ही रहना चाहे, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। अगर वो अपनी डायरेक्शन में रहे तो उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। सिंपल, कितनी सी बात है। मैंने यही लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच टू कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट में चाहे तो रेस्ट में रहना चाहे, जब तक हम वर्ड से फोर्स ना लगाएं। तो अगर रेस्ट में ही रहना चाहे तो उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे, क्योंकि इनर्शिया प्रॉपर्टी वही, खूबी वही है, या तो रेस्ट में रहे, या मोशन में रहे, या डायरेक्शन में रहे। तो तीनों चीजें मैंने यहां पे डिस्कस की। तो आप देखो, ये मैं एग्जांपल लिखी है आपके लिए, और मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहता हूं। देखो, पैसेंजर से गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी चलना शुरू हुई। अब ये एग्जांपल के साथ समझना, मान लो कि ये पैसेंजर कोई खड़ा है बीच में गाड़ी के, गाड़ी है ये चलना शुरू हो गई। ठीक है, अब इसे क्या होगा? गाड़ी चल रही है, ठीक है, चलते चलते एकदम से उसने ब्रेक लगाई। अब देखो, जैसे ब्रेक लगाएगी, उस बंदे का या उस पैसेंजर का ये जो लोअर वाला पार्ट है, ये जो हिस्सा है, यानी कि उसके जो पांव हैं, वो गाड़ी के साथ टच है ना, तो वो रुकेंगे, लेकिन बॉडी तो फिर भी आगे आगे की तरफ है, तो इसका मतलब आगे गिरेगी ना। पांव पीछे हो जाए तो बॉडी पूरी आगे गिरेगी। हम देखो ना, पांव पीछे करेंगे तो बॉडी आगे गिरेगी। अगर इसी तरह से चलती हुई गाड़ी एकदम से रुके,
रुकेगी तो ये वाली चीज जो है ना, ये आगे, क्योंकि ये मोशन में ही है, ये मोशन में ही है ऑलरेडी। तो एकदम से ब्रेक मारोगे तो क्या होगा, देखो ब्रेक मारोगे तो ऐसे रुकेगी ना गाड़ी, ऐसे देखो ना, ब्रेक, ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये ऊपर बंदा खड़ा है, तो जैसे ये देखो चलते चलते ये ऐसे रुकी तो बंदा आगे गिर गया, ये देखो ना ऐसे आगे गिर गया, आगे गिर गया। अब एक जगह खड़ी है, चलना शुरू हुई, ये देखो ये पीछे आ जाएगा, जैसे चलना, ये देखो ये अपनी पोजीशन में है ना, जैसे आगे गई तो ये पीछे, इसी तरह से तो होता है, यही है। तो गाड़ी में जब ब्रेक लगेगी तो बंदा आगे गिरेगा, जब जैसे ही रुकी हुई गाड़ी चलना शुरू हो तो पांव हमारे मोशन में, हमारी बॉडी पूरी पीछे, ठीक है। तो ये होता, इसी तरह से चलती हुई गाड़ी जब होती है तो हमारी पूरी ऊपर वाली बॉडी और सारी बॉडी जो है ना वो आगे वाले मोशन में होती है। तो जैसे हम नीचे आते हैं ना, अगर हम छलांग लगा दें नीचे गाड़ी से, अगर जंप करते हैं तो जैसे नीचे हमारे पांव तो रेस्ट में आएंगे, लेकिन ऊपर वाली बॉडी अभी भी मोशन में है। हमारे पांव पहले नीचे आते हैं ना जमीन पे, कि पहले सिर से उतरते हैं हम, पहले सिर थोड़ी नीचे आता है। अरे तो कमाल है, सिर कहां नीचे, पहले पांव नीचे रखते। तो जब पांव नीचे आ गया तो पांव आगे रेस्ट में, बॉडी तो अभी भी मोशन में, और ये रेस्ट में आ गया, देख टूट गया नाक। तो मतलब कि आगे की तरफ गिरोगे, जब चलती गाड़ी से आप छलांग लगाओगे तो आप आगे ही गिरोगे। ओके, तो ये था आज लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ फोर्स और मोशन और इनर्शिया के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। आप मुझे ये चीज बता दो, चलो 1 मिनट का मैं आपसे पूछता हूं, जो चीजें भारी होती है, ठीक है, भारी समझते हो ना, जो हल्की नहीं होती, जिनका वजन ज्यादा होता है, वो फेंकने पर ज्यादा दूर जाती है या जो हल्की होती हैं? भारी दूर जाती है या हल्की दूर जाती है, ये बताइए मुझे। जो चीजें भारी होती हैं वो आगे जाएंगी, ज्यादा दूर जाएंगी, या जो हल्की होती है वो दूर जा सकती है? भारी चीजें दूर जाती है, कुछ बोल रही कि भारी दूर जाती है, कुछ बोलते हैं हल्की दूर जाती है। एक चीज बताओ मुझे कि भारी चीजें दूर जाती हैं या पास, मतलब हम उसको थ्रो करें तो भारी चीज दूर जाती है, ठीक है। आपने कहा भारी चीज दूर जाती है, तो एक काम करते हैं, एक लेते हैं मार्कर और एक 100 किलो का पत्थर फेंकते हैं, मार्कर दूर जाएगा या वो जाएगा? ठीक है, डेफिनेटली इसका मतलब हल्की चीजें जो हैं वो दूर जाती हैं, इसका मतलब हल्की चीजें दूर जाती हैं, तो ये उल्टी चीज होगी। भारी इसका मतलब दूर नहीं जाती है ना, इसका मतलब भारी चीज कहां रही, पास में। भारी चीजें पास रहती हैं, हल्की चीजें दूर जाती हैं, ये आपने बोल दिया। अब सुनो ध्यान से, मुझे बताओ, एक छोटा सा आपके पास आ रहा बेटा, ओके, तो जैसे ये पेज है, ये हल्का है या ये हल्का है? मार्कर हल्का, अरे लो ना, मार्कर हल्का है, ये पेज हल्का है, पेज हल्का है, इसको भी फेंको, मार्कर को भी फेंको, दूर कौन जाएगा? मार्कर जाएगा। इसका मतलब भारी दूर जाती है, हल्की पास रहती है। अभी तो लिखा था कि भारी पास रहती हैं, इसका मतलब भारी दूर जाती है। यही चीज कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको मोमेंट ऑफ ये मोमेंटम के बारे में समझाऊंगा अपने